Is space is really empty? I will say no. So you might ask from me that how it possible that a space is not empty or the vacuum is not empty. I want to say that vacuum is not empty. It means space where nothing exists is not actually it mean to be said that nothing exists. Something there is that. So I would explain this to by the using Werner Heisenberg uncertainty principle. That say if there is small change in time, for example for a microsecond, there must be some energy. How I will explain, let us know, understand. So I will explain this through. I will explain this through Werner Heisenberg. Uncertainty principle. That implies that which say that energy that is change in time is greater than equal to h upon 4 pi, where delta E represent change in energy, and delta T represent change in time, and where h equal to Planck's constant. Planck constant. So here we see that there is a small change in energy, that a small change in time greater than equal to h upon 4 pi. Here for a space, in a space for a small instant of time, there must be exist some energy. For example for a microsecond, if there is for microsecond there must be exist some energy, so it will equal or it greater than h upon 4 pi. मतलब समझो, अगर यहाँ पे स्मॉल टाइम होगा, अगर एक स्मॉल टाइम मान लो मिली और माइक्रो सेकंड के लिए लेते हैं, उस मिली और माइक्रो सेकंड के लिए अगर इसको इस इक्वेशन को ट्रू होना है, अगर इस इक्वेशन को ट्रू होना है तो क्या करना पड़ेगा कि इस एनर्जी को होना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्मॉल इंस्टेंट पर अगर कोई टाइम पे अगर ये एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब ये इक्वेशन ही गलत है, ये प्रिंसिपल ही गलत है। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल सही है, क्या ये प्रिंसिपल सही है? स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी होगा जो कि इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट। तो देखो अगर इस इक्वेशन सही है तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि इक्वेशन यहाँ पे सही है और किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट पे ये सही नहीं होगा, हर एक जगह पे सही होगा। तो ये देखा क्या कि अगर हर एक जगह पे सही है तो ये वैक्यूम और स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में भी सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो मतलब एम्प्टी स्पेस में भी गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ट्रू है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें जो एनर्जी है ना, अगर एनर्जी कहाँ से आ रही है पहले पता करेंगे कि फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी केम। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक हम जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे एक और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट इज चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। जैसे उसमें क्या होता है ना, उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम मान लो कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जो कि न्यूक्लियस का अराउंड क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे ना उस इलेक्ट्रॉन का क्या किए हम मोमेंटम पता कर लिए, एग्जैक्ट मोमेंटम पता कर लिए। तो एग्जैक्ट पोजीशन में क्या होगा, अनसर्टेन होगा, वो एग्जैक्ट पोजीशन उसका नहीं पता कर पाएंगे अगर एग्जैक्ट मोमेंटम पता किए, या तो बोले अगर उसका एग्जैक्ट मोमेंटम पता किए तो पोजीशन नहीं कर पाएंगे, अगर एग्जैक्ट पोजीशन किए तो मोमेंटम को नहीं पता कर पाएंगे। तो ये जो 11th स्टैंडर्ड पढ़े थे ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच गिवन बाय द हाइजेनबर्ग, जो कि रिप्रेजेंट करता है इट इज ऑल्सो सेम दैट इज चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन we can say position it greater than equal to h upon 4 pi, right, which is also greater than h upon 4 pi, where p is the momentum and this is the x is the position, x is the
position. So here we came to know that now first equation, let's consider this equation number 1, and I will here come and so from where does this energy came, right? So this energy came, to understand this we will move to the quantum mechanics, having the phenomena that is called quantum fluctuation, right? Quantum fluctuation. So you might ask what is quantum fluctuation. So I will explain you in detail that's quantum fluctuation, nothing but it's a rapid change or rapid exchange in energy in a point in a space. मतलब कि rapidly increase हो रहा है या तो decrease होगा किसी भी point में, space के किसी भी point में rapidly increase या decrease हो रहा है किसका, energy का. तो मतलब क्या इसको समझते हैं, इसको सिंपली समझते हैं. देखो मान लो कि किसी भी पॉइंट पे, मान लो कि अगर हम कहीं पे एक इम्प्टी स्पेस कंसीडर करते हैं, राइट, एक इम्प्टी स्पेस कंसीडर कर लेते हैं किसी भी पॉइंट पे जाके इम्प्टी स्पेस कंसीडर कर लिया, ठीक है. उस इम्प्टी स्पेस में ऑर्डिनरी माइंड यह क्या कहेगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा, पर लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम फ्लक्चुएशन कहता है कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी नहीं है. अगर एनर्जी नहीं है तो इक्वेशन गलत है, इक्वेशन गलत है, इक्वेशन सही है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयर एनाइलेशन हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे पेयर एनाइलेशन हो रहा है. पेयर एनाइलेशन क्या होता है इसको समझेंगे. इससे पहले थोड़ा एक और कंसेप्ट है वो हम समझ लेते हैं. पेयर एनाइलेशन से पहले आवर ऑर्डिनरी माइंड से देयर इज नथिंग एग्जिस्ट, बट quantum mechanics in quantum fluctuation says there's something exists that is energy. So what is pair annihilation? To understand the pair annihilation, before we go to the know what the particles and antiparticle, right? What is a particles and what is an antiparticle? So first of all we understand the concept, and after that we will come to this concept, right? Pair annihilation. Before understanding pair annihilation, we are going to understand two particles and antiparticles, right? So what are the particles and what are the antiparticles? Okay. So the particles are nothing but the constituents of matter, right? We know that it is the constituent of matter. So if we take as a matter made up of electron, proton, neutron, so particles are such as electrons, protons and neutrons. But what are the antiparticles? These are the new thing. So we are going to understand antiparticle क्या है. यहाँ पे antiparticle पार्टिकल का जस्ट अपोजिट है. अपोजिट बोले तो चार्ज सेम है बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड है. अगर हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसका एंटी पार्टिकल को क्या बोलते हैं, उसका एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन बोलते हैं. तो अगर पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो एंटी पार्टिकल होगा उसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल बोल रहे हैं, वो होगा पॉजिट्रॉन. क्या है यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है. एक डिफरेंस उसका स्पिन का हो गया और दूसरा डिफरेंस यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है. अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा. अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो इसका माइनस है तो इसका प्लस होगा, बस चार्ज में डिफरेंस होगा. तो ये हो गया पार्टिकल, ये हो गया एंटी पार्टिकल. हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटोन कंसिडर करेंगे तो प्रोटोन का एंटी पार्टिकल होगा एंटी प्रोटोन उसको बोलते हैं, राइट. तो ये था बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि अगर हो क्या रहा है वहाँ पे. तो अब चलते हैं पेयर एनाइलेशन पे, उसको समझते हैं कि एनर्जी कहाँ से आ रहा है, अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पे, राइट. नाउ विल कम टू द पेयर एनाइलेशन, राइट. अगेन वी कम टू द आवर पेयर एनाइलेशन. So the what is pair annihilation? Pair annihilation is nothing but it is a continuous in the space, in the empty space there is a continuous formation of particles and antiparticles. For example, here we will consider the electrons coming with an positron, and what happens here, electron after time they come and positron they come and they come together and they snap together and they produce some amount of energy. These energy are simply photons which can, or gamma radiation. These all are the gamma radiation which contain some energy. This contains some energy which is form of radiation, right? In the form of radiation, which is electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation, right? So now the question arises that how do you know? So once time when the scientist was researching for something in space, he found that there is an enormous change in heat in an empty space. When he found that it was a space where empty, मतलब जहाँ पे वो साइंटिस्ट देख रहा था ना, वहाँ पे क्या था कि empty space था. एक्चुअली वहाँ पे कुछ था नहीं, उसके बावजूद भी वहाँ पे क्या हो रहा, इनॉर्मस हीट में चेंज हो रहा था. अगर हीट में चेंज क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे पेयर एनाइलेशन हो रहा था. क्या हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन
पेयर लिया, जन्म लिया पॉजिट्रॉन के साथ, कि अगर कोई पार्टिकल जन्म ले रहा है तो उसके साथ एक एंटी पार्टिकल होगा ही होगा। तो क्या प्रोड्यूस हुआ और फिर एक बार क्या स्नैप्स किया, स्नैप्स करके क्या किया कि रेडिएशन इमिट किया, जो कि इन फॉर्म ऑफ, जो कि रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज एनर्जी। तो क्या हो रहा है कि उसके कारण ना कंटिन्यूअस चेंज इन एनर्जी हो रहा है, राइट। ये वीडियो में जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, इसमें जो दिखाएंगे उस सिमिलर चीज वहाँ पे एम्प्टी स्पेस में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि तुम ये क्वेश्चन है कि तुमको कैसे पता, तो वही एनर्जी के चेंज के कारण वहाँ पे हीट कंटिन्यूस प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे यह पता चला कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। तो यही था पेयर एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद और डिटेल में इसको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है। सो यही कारण है इस एनर्जी के होने का, कि इस यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है ना, वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, एनर्जी पेयर एनाइलेशन से हो रहा है। क्योंकि हर एक पॉइंट पे हो रहा है स्पेस में, जहाँ अगर किसी भी पॉइंट पे, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल स्पेस, मतलब इम्प्टी स्पेस, मान लो हर एक जगह पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या पेयर जनरेट हो रहा है, और क्या कर रहा है, दोनों के साथ में जाकर स्नैप्स करके एकदम स्नैप्स कर रहा है, एनर्जी को रेडिएट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन, राइट। थोड़ा और इसको समझते हैं, ठीक है, और स्लाइड चेंज करके और इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन एक होता है कि अगर ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होगा तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन दिस फेनोमेना टेक्स प्लेस इन इवेंट होराइजन। ऑफ ब्लैक होल। तो क्या होगा ना, अगर इवेंट होराइजन पे, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इसको और समझेंगे कि अगर इवेंट होराइजन के ब्लैक होल के पास अगर ये हुआ तो क्या होगा कि हॉकिंग रेडिएशन फिनोमेना, जो हॉकिंग ने बताया था कि ये ब्लैक होल भी रेडिएशन इमिट करता है, और एक समय के बाद, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम, लेस एनर्जी इमिट करता है, कि बहुत टाइम लगेगा उसको पूरा इवोपरेट होने में, क्योंकि वही इवोपरेट होता है, ब्लैक होल भी इवोपरेट होता है। क्या होता है कि उसको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो कि ब्लैक होल है, राइट, ये अगर ब्लैक होल है, पेयर ये क्या भी होता है, क्वांटम फ्लक्चुएशन, ये मान लो ब्लैक होल है, ठीक है, ये इसका इवेंट होराइजन है, ठीक है, सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल हो गया, ये उसका सिंगुलैरिटी हो गया, राइट। अगर ये उसका शॉर्ट चिल्ड रेडियस भी बोलते हैं उसको, जो डिस्टेंस होता है ना ब्लैक सिंगुलैरिटी से लेकर के जो इवेंट होराइजन, उसको शॉर्ट चिल्ड रेडियस भी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे एनी हाउ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट हुआ, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, पेयर यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे जनरेट हुआ, ठीक। और क्या हुआ कि एनी हाउ मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया यहाँ पे, ठीक है। अभी तक ये क्या वर्चुअल पार्टिकल है, हर एक किस्म जो भी ले रहा है वर्चुअल पार्टिकल है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्टेंस है, ठीक है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनी हाउ इन किया, तो अब इलेक्ट्रॉन इन किया तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चल गए और पॉजिट्रॉन बाहर गया। अब क्या किया कि वर्चुअल पार्टिकल से रियल पार्टिकल बन करके गया, क्या स्पेस में मूव कर गया, और फाइनली बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो वर्चुअल पार्टिकल था और रियल पार्टिकल बन के अंदर जाएगा, और फाइनली क्या इसको इवोपरेट करेगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। उसके बाद क्या है किसी को नहीं पता। तो इसके बारे में नहीं जानते हैं हम लोग, सिंपली उसको समझेंगे कि एनर्जी कहाँ से है। तो देखो एनर्जी तो पता चलेगा कि पेयर एनाइलेशन से आ रहा है, ठीक है। वही कारण है कि किसी भी इम्प्टी स्पेस में एक्चुअली में इम्प्टी नहीं होता है। कोई भी वैक्यूम ले लो, कोई भी वैक्यूम स्पेस ले लो, कहीं पे भी ले लो, लेकिन वो असल में एक्चुअली में इम्प्टी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ होता है। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ सर्न, जो कि LHC लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में होता है, उसमें यह पता चला था हिग्स फील्ड होता है, जो कि हर एक जगह पे प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है, मास देने का काम करता है। हिग्स फील्ड का काम है मास देना, हर एक बॉडी को वही मास देता है, और उसको बोलते हैं हिग्स बोसोन। तो ऐसे भी पता था कि अगर वो होगा तो कहने की एनर्जी तो है, कहने की कुछ ना कुछ तो है। मान लो एनर्जी नहीं भी होता था, कुछ ना कुछ है, लेकिन ये अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो चुका है कि इम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ होता है, और वो कुछ नहीं कुछ और क्या नहीं, एनर्जी है, नथिंग बट इट्स एनर्जी, बिकॉज एक स्मॉल टाइम के लिए आ रहा है, पेयर एनाइलेशन हो रहा है, और उस पेयर एनाइलेशन के कारण क्या हो रहा है कि ये एनर्जी रेडिएट करने फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो वहाँ पे प्रेजेंट है। इम्प्टी एक्चुअली इम्प्टी होता ही नहीं है। चलिए तो यही था, अच्छा लगे भाई लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू।